Good morning, children. In last class, we already discussed some properties related to rational numbers. That is closure property, then commutativity, associativity. These three properties we are discussed in detail, and we solved some examples by using these properties. Now there is one important property related to this rational numbers, and this property is distributivity of multiplication over addition. So today we will see this property. Now before seeing this property, students, we already discussed the role of 0, the role of 1, that is additive identity, multiplicative identity, additive inverse, multiplicative inverse. All these things we discussed in last period. So today we are going to discuss the property distributivity of multiplication over addition. Distributivity of multiplication over addition. So students, we have to see this property. So what is distributivity of multiplication? Suppose we have three rational numbers, 2 by 3, 4 by 2, 4 by 5 and 3 by 5. So we have these three. Let us take these three rational numbers. Now we write this rational number in this way: 2 by 3 into 4 by 5 plus 3 by 5. So what we did here, let me take these three rational numbers and we multiply this bracket by 2 by 3. That is, in bracket there is addition, and we have to add these two numbers, and then this addition we have to multiply it by 2 by 3. So what we get here, that is 2 by 3 is into, here denominators are same, so we have to add the numerator, that is 4 plus 3, that is 7 by 5, and we get the answer 7 2s are 14 and 5 3s are 15. Now अब हम क्या करेंगे? Now this 2 by 3 इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई के लिए है. इसका मतलब है कि इस 2 by 3 से इस ब्रैकेट के अंदर के प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई करना है. तो हम क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. दैट इज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2 by 3 into 4 by 5. 2 by 3 से 4 by 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आएगा प्लस अगेन 2 by 3 से हम 3 by 5 को मल्टीप्लाई करेंगे. So 2 by 3 into 4 by 5 plus 2 by 3 into 3 by 5. So now we solve this. That is 4 2s are 8, 3 5s are 15 plus 3 2s are 6, 3 5s are 15. So here denominators are same. So we add the numerator, 8 plus 6 14 by 15. So we get the same answer. So what we did here, क्या किया है हमने यहाँ? तो 2 by 3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया. तो हमने पहले यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन 2 by 3 से स्टार्ट किया, आंसर आया 14 by 15. फिर 2 by 3 इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है. इसका मतलब है कि 2 by 3 से इस ब्रैकेट के अंदर के प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई करना है. वो हमने किया और उनको सॉल्व किया, तो आंसर हमें क्या मिलता है? 14 by 15. So this is our distributivity of multiplication over addition.
यह है जो फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देखी, उसके बाद कम्यूटेटिविटी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड द फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इस प्रकार हम ये सभी प्रॉपर्टी जो रैशनल नंबर के बारे में देख चुके हैं। इसको इस प्रकार में लिख सकते हैं कि इसका मतलब है, इट मींस दैट वी हैव टू राइट इन दिस वे, दैट इज 2/3 into bracket 4/5 plus 3/5 equal to 2/3 into 4/5 plus 2/3 into 3/5. So we write this in this way. So this product and this product with this addition both are same. So this property is called distributivity. मतलब हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर addition. Okay, so dear students, in last period we already solved some problems by using this property. Today also we have to discuss some problem by using this property. Now let us take one example. Solve, or you can say simplify, 3/5 into -1/4 minus 2/3 plus 3/5 into 3/4. Here we have this problem. We have to solve this. Now say the first term and the second term, ये हम दो टर्म यहाँ देखेंगे, हमें पता चलेगा कि इन दो टर्म में 3/5 कॉमन है, इसलिए हम उसको एक साथ लेके आएंगे। 3/5 into -1/4 plus 3/5 into 3/4 और -2/3 जो है वो इस प्रकार लिखेंगे। अब इन दोनों में ये जो दो टर्म्स है, इन दो टर्म में ये जो 3/5 है ये कॉमन है, इसलिए हम इस 3/5 को कॉमन निकालेंगे। सो यू विल टेक आउट कॉमन 3/5, सो इनटू इन ब्रैकेट में क्या आएगा फिर -1/4 और प्लस यहाँ आएगा 3/4 और -2/3 ये टर्म तो यहाँ है। फिर और नेक्स्ट आगे जाएंगे 3/5 into तो -1/4 plus 3/4, सो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 4 वैसे रहेगा और -1 plus 3 2 and 2/4 -2/3। सो अगेन नेक्स्ट टर्म हम करेंगे, यहाँ तो सिंप्लीफाई करो या तो फिर मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक बार सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2/4 को हम लिखेंगे 1/2, 2 1 2 2 2 4 -2/3। नाउ नेक्स्ट स्टेप, पहले तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर। सो व्हाट वी गेट हियर, 3 1 3, 5 2 10 -2/3। So again we have to multiply, we have to do here subtraction, हमें subtraction करनी है। So 3 3 9 minus 2 10 2 20 upon 10 3 30। So 9 में से 20 गया -11, so -11/30। So in this way we can solve this example. So which properties we use here? So what we did, क्या किया हमने तो यहाँ कम्यूटेटिविटी यूज की और फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज की। सो हम यहाँ लिख सकते हैं बाई कम्यूटेटिविटी। तो हमने यहाँ कम्यूटेटिविटी का यूज किया और यहाँ हमने ब्रैकेट कॉमन निकाला, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं बाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो इस प्रकार हम प्रॉपर्टीज का यूज करके एक सिंपल कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? हम इस प्रकार कम्यूटेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि 3/2 into -1/4 -2/3
2/3 into 9/5 plus 3/2 into minus 3/4। फिर यहाँ फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म 3/2 यहाँ भी है, 3/2 यहाँ पर भी है, इसलिए हम इन दो टर्म्स को नजदीक लेके आएंगे। सो 3/2 into -1/4 plus 3/2 into minus 3/4 एंड ये जो टर्म है यहाँ लिख लेंगे -2/3 into 9/5। अब हमने क्या किया है यहाँ, ये पहली टर्म और थर्ड टर्म को एक साथ लाया, मतलब हमने ऑर्डर चेंज किया, लेकिन साइन के साथ किया, मतलब हमने कोई भी चेंज इधर नहीं किया है, मतलब हमने यहाँ कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का यूज किया, और इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे बाय कम्यूटेटिविटी। अब पहली जो है दो टर्म्स है 3/2 into -1/4 plus 3/2 into -3/4, इनमें 3/2 और यहाँ भी 3/2 कॉमन है, तो हम 3/2 को यहाँ कॉमन निकालेंगे, और 3/2 अगर कॉमन निकालते हैं तो इनटू ब्रैकेट यहाँ मिलेगा -1/4 -3/4, और ये जो लास्ट टर्म है इसी प्रकार लिखेंगे -2/3 into 9/5। अब आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ 3/2 into ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर 4 वैसे ही रखेंगे, और -1 -3 -4 होता है, सो 3/2 into -4/4, और ये जो टर्म है 2/3 into 9/5। अब यहाँ या तो हम न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर ये प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ -4/4 है तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज 3/2 -4/4 मींस इनटू -1। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 3 से इस 9 को भाग जा रहा है, 3 3 9, सो 3 2 6 अपॉन 5, अब 3/2 इनटू -1 -3/2 हो जाएगा एंड -6/5। तो हम इस स्टेप पर आ गए। अब फिर यहाँ -3/2 -6/5 को हमें सॉल्व करना है, ये सबट्रैक्शन करनी है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हम इनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। 3 into 5 -15, 6 into 2 -12 upon 5 into 2 10। So if we add this -15 -12, that is -27/10। अब यहाँ देखिए इस एग्जांपल में हमने यहाँ 3/2 को कॉमन निकाला और ब्रैकेट में -1/4 और -3/4 यहाँ आया है। अगर हम 3/2 से यहाँ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये ऊपर जो दो टर्म्स है ये मिल जाएगी, या यहाँ से 3/2 कॉमन निकालते हैं तो ये नीचे की जो टर्म है ये मिल जाएगी, मतलब हमने यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी का यूज किया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। और इस एग्जांपल को हम सिंप्लीफाई करके जो फाइनल आंसर है वो -27/10 आता है। इस प्रकार जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी या डिस्ट्रीब्यूटिविटी, इन प्रॉपर्टीज को अगर हम यूज करते हैं तो ये जो एग्जांपल है बहुत सिंप्लीफाई हो जाते हैं और हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऑर्डर चेंज किया, मतलब हमने कम्यूटेटिविटी का यूज किया, यहाँ हमने 3/2 को कॉमन निकाला, मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज किया, और इस प्रकार हम आगे बढ़ते गए और हम एक फाइनल आंसर पे आए, दैट इज -27/10। तो इस प्रकार आप इन प्रॉपर्टीज का यूज करके एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट पीरियड already we have discussed about
some properties related to rational numbers, that is multiplicative inverse, then additive inverse, additive identity and multiplicative identity. उसमें से हम एक जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और यू कैन से इन अदर वर्ड्स रेसिप्रोकल्स, हम इसको रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। तो हमने देखा कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट 1 होता है, उनको एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल कहते हैं। जैसे कि अगर 2/3 को हमने 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये डिवीजन हो जाएगा यहाँ और प्रोडक्ट आएगा 1। इसका मतलब ये है कि 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2 है और 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/3 है। अब 1 जो है, 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट 1 मिलेगा। इसका मतलब है कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 है। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन ऑलवेज अराइज, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0? 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? तो 0 यानी 0/1 होगा। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते तो आप जानते हैं कि जब 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2 है, मतलब हमने रेसिप्रोकल ही लिया। अब 0/1 को अगर हम रेसिप्रोकल लेने जाएंगे तो 1/0 होगा। और इस टर्म को आप जानते हैं, कैन वी फाइंड द आंसर 1/0? ये आंसर हम निकाल सकते हैं क्या? इसका आंसर है नहीं। हम 1/0 को डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब 0 से हम किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब इस फॉर्म को हम मीनिंगलेस फॉर्म भी बोल सकते हैं, या इस फॉर्म को हम नॉट डिफाइंड करके भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिफाइन नहीं किया गया है। 0 से कैसे डिवाइड करना इसका पता अभी तक नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि 0 हैज नो रेसिप्रोकल, यानी 0 हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 0 को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, 0 को रेसिप्रोकल नहीं है। रेसिप्रोकल तो आप नेगेटिव संख्या का भी ले सकते हैं। अगर आपने -3/2 का अगर रेसिप्रोकल लिया तो -2/3 हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि -3/2 का रेसिप्रोकल -2/3 है और -2/3 का रेसिप्रोकल -3/2 है। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/2 इज -2/3। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/2 इज -2/3। इस प्रकार कर सकते हैं। अगर -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पूछते हैं तो वही संख्या होगी, क्योंकि जब हम -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट 1 आएगा, और जिन दो संख्याओं का प्रोडक्ट 1 आता है वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती है। इसलिए -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होगा। ये फिर से इसलिए अब बताया क्योंकि जब आप दो रैशनल नंबर्स का डिवीजन करते हैं तो हम जानते हैं कि डिवीजन का विरुद्ध हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, और वो रेसिप्रोकल जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उस संख्या का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेके मल्टीप्लाई करते हैं। और इसीलिए ये हमारे बहुत काम की जो प्रॉपर्टी है। तो इन टुडेस जो हमने ये लेसन लिया है, इस लेसन में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और इसके पहले जो प्रॉपर्टीज हमने ली थी उन सब प्रॉपर्टीज का और आज की प्रॉपर्टी का यूज करके एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देखा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक बार फिर से हमने मतलब देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, लर्न इट वेरी वेल, स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू।